There, how are you students? Okay, students, we are doing chapter number 2 of class 9th Punjab textbook, and we have already discussed the properties and the laws of real and complex numbers basically in the previous video. Now thoroughly we have to start the exercise, and I must say now it's so simple to solve you the exercise because all the related properties and laws you already have done. But if you have done, like if you have watched the video thoroughly, then definitely there is no problem while you're solving the exercise. Okay, so let's start the exercise. Okay student, this is exercise number 2.2 and the question number is 1, that is identify the properties used in the following. Which property we have used? Okay, this is a plus b is equal to b plus a. Students, this is very easy property. When you know the order of the number is changed, this is commutative property with respect to addition. Remember one thing, this is addition sign. Why this is with respect to WRT का मतलब है ये short format with respect to addition, because the sign here used, that is the operation, main operation is positive plus sign. That's why we have to mention the positive sign. Next, second, ABC is equal to ABC. Here the brackets, the order of the bracket is just moved or changed. It means this is associative property with respect to multiplication. Why? Because there is no addition sign, so we have to use the sign multiplication with respect to WRT, means with respect to multiplication. Now 7 1 is 7. Student, a very important property here, that is whenever you are going to multiply one with another number, the answer will be that number, and this is multiplicative identity. Why multiplicative? Because this is a multiplication sign, so it is multiplicative identity because 1 is the multiplicative identity. Now the other one, x is greater than y, or x is equal to y, or x is less than y. There are three relation we are discussing here in this property, but in one time only one, because this is odd. Okay, और अब इसका जो नाम है that is, this is trichotomy property. Trichotomy है, इसमें ये इसकी pronunciation mention की गई कि how you have to pronounce this word, and this is the name of the property. Now AB is equal to B is so simple. Once again we are having two number and the order of the two numbers is changed. This is commutative property, but with respect to multiplication, students look at here. This is the first and the fifth are same. The difference is just the operation. Okay, next, दिस इज a प्लस सी इज इक्वल टू b प्लस सी. स्टूडेंट्स, ये बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है. आपने क्या करना है इसको, कि आप देखें कि दोनों तरफ आपके पास एक ऐसा लेटर है जो बिल्कुल सेम है. आप आज तक जितने भी हम क्वेश्चन क्लास 8 में 7 में 6 में डिस्कस करते हैं, whenever we are discussing the equations and we have to cancel one thing, same like if this is c and this is also c, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं और कैंसिलेशन के बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा a इज इक्वल टू b. ठीक है, यहाँ भी पॉजिटिव सी है, यहाँ भी पॉजिटिव सी, और अगर यहाँ पर इक्वल दरमियान में इक्वल का साइन है तो हम डायरेक्ट इसकी कैंसिलेशन कर सकते हैं, और इसका नाम है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी फॉर एडिशन बिकॉज द साइन इज एडिशन. नाउ द नेक्स्ट, नाउ 5 इज व्हेन यू ऐड 5 विद -5, आंसर इज 0. 5 का जो एडिटिव, अब ये देखिए मेन, अब इसका नाम क्या है कि 5 में किसको ऐड करेंगे कि आंसर जो है 0 है तो -5 में ऐड करेंगे. तो स्टूडेंट, इसका आपके पास जो नाम है दैट इज एडिटिव इनवर्स. ऐड से याद रखें ये ऐड है मेन ऑपरेशन, तो इसको बोलेंगे एडिटिव इनवर्स. नेक्स्ट, 7 is going to multiply with 1 by 7 and answer is 1. Once again you need, अब यहाँ पर multiply का word यूज हो रहा है तो इसका जो नाम है multiplicative inverse है. ओके, नेक्स्ट आपके पास a is greater than b. This implies, ये जो साइन है इस शो करता है एक रिजल्ट को, इसके बाद जो एक रिजल्ट आता है इसको this implies कहते हैं that a से is बड़ा है किससे, b से a से is greater than b. अब ये देखिए यहाँ पर पहले a b था, हम अगर दोनों तरफ c से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी c से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी c से मल्टीप्लाई करते हैं, हम कुछ चीज मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब है ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है. स्टूडेंट, वन थिंग कीप इन योर माइंड, डू नॉट मिक्स विद द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बिकॉज दैट इज समहाउ डिफरेंट एंड दिस इज प्रॉपर्टी एंड दैट इज आइडेंटिटी. ओके, यहाँ देखें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है बिकॉज जब आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये चीज फर्क है, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स. वी हैव टू, द ब्लैंक्स हमने फिल करनी है और वहां पर मेंशन करने हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है रियल नंबर में. ठीक है, फर्स्ट देखें आपके पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट वो ये है 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स. तो आप ये देखें सबसे पहला जो स्टेप है, हम इसको 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एज इट इज, और 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी कौन सी यूज हो रही है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये हमने पढ़ी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. पहले 3 को y से करते हैं, फिर ये जैसे नाम था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन नाम था इसका, जो हमने फर्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस किया था. उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स,
हम नॉर्मली क्या करते हैं जब इस किस्म के क्वेश्चन आते हैं, हम यहाँ पर 3x को इसकी डायरेक्ट कैंसिलेशन कर देते हैं, बिकॉज यहाँ पर हमें क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है दैट वी हैव टू मेंशन द प्रॉपर्टीज वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, तो हम इसको इसके साथ लिख देते हैं। लेकिन देखिए हम आज तक ऐसे ही सवाल करते आते हैं, बट वी नेवर even try to do like we are not mentioning कि हम ये क्या कर रहे हैं, हमने ये स्टेप क्यों किया, और हमें जरूरत नहीं होती हम जब न्यू क्वेश्चन करते हैं। लेकिन एटलीस्ट स्टूडेंट्स वी शुड नो एंड यू शुड नो व्हाई वी आर डूइंग दिस स्टेप, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये कैसे बनी ये चीज, ये किस लॉ के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं। सो हियर वी आर बेसिकली डिस्कसिंग दैट लॉज दैट ऑलरेडी हैव मेड इट। ओके हम क्या करेंगे, 3x को जो नेगेटिव साइन है इसको इसके साथ लिखेंगे, और ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है बिकॉज हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, 3x को हमने इसके साथ लिखा। और अब नेक्स्ट देखें आप, 3x की और -x की कैंसिलेशन, दैट इज 0। इट मींस y 0 बिकॉज दो नंबर को हम सब्ट्रैक्ट ऐड कर रहे हैं तो आंसर 0 आ रहा है, तो हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स है। नेक्स्ट जब आप 3y में 0 को प्लस करते हैं, यू आर गेटिंग वंस अगेन 3y एंड दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। ओके नाउ give the name the property, basically we have to give the names of the property again like question number 1। इसमें देखें आपके पास पहला क्वेश्चन है, इसको आप इस नंबर में हमने 0 में इसको ऐड किया तो आंसर इन रिटर्न वी आर हैविंग दिस थिंग, इसका मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, ये क्या चीज है, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी। सेकंड देखिए आप, ये आपके पास नंबर है -2/3 इंटू 5 + 7/2। पहले -2/3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस इज द मेन ऑपरेशन, देन -2/3 को 7/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। This is our distributive property or distributive law. The next is 5 plus -5. There are two numbers, when we add the answer is 0, it means this is additive inverse. Okay. Now देखिए √3 एक नंबर है, फिर ये √3 में नंबर है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिकॉज बेसिकली दे आर मल्टीप्लाइंग, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर है, इसका स्क्वायर आएगा, स्क्वायर की स्क्वायर रूट से कटिंग हो जाएगी, 3 आ जाएगा और वो भी एक रियल नंबर होगा। तो ये एक क्लोजर प्रॉपर्टी है कि जब हम दो नंबर को सॉल्व करते हैं, उस पर कोई ऑपरेशन अप्लाई करते हैं और वो उसी सेट में रह जाए, तो उसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट आपके पास है कि -5/8 और ये -8/5 है। स्टूडेंट अगर आप देखें, मैं आपसे पूछूंगी माइनस लाइक 5/8 का ये किस चीज का इनवर्स है, तो अगर आप हम इसको देखें तो क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं एक दूसरे के, दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस ऑफ ईच अदर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 1। इवन -8/5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखें 5 की 5 से कैंसिलेशन, 8 की 8 से कैंसिलेशन, माइनस माइनस प्लस, और इसका नाम आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके अलावा आप देखें इसको ऐसे भी, आप इसको यूं याद रखें कि आपके पास ये किस चीज का, ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हैं। तो स्टूडेंट्स दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दिस इज अ वेरी स्मॉल एक्सरसाइज, होप सो आपको समझ आई होगी। स्टूडेंट्स कभी भी इनको पहली बात ये कि थॉरली पहले जो प्रीवियस वीडियो उसको देखें, आपको इसमें कभी भी कोई डिफिकल्टी पेश नहीं आएगी, क्योंकि अगर आप उसको अच्छे से देख लेते हैं। और दूसरी बात ये स्टूडेंट्स, कभी भी ये जो आप रटा लगाते हैं, आप ये कहते हैं कि हमें ये, हम इसको नहीं करेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव वाइज है, इफ यू वांट टू गेट अ फुल मार्क्स आई मस्ट से, एंड मार्क्स से हटकर भी देखें तो दिस इज द काइंड ऑफ नॉलेज, आप इसको स्टडीज इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। और क्योंकि आप थॉरली जब हायर सेक्शंस में जाते हैं, हायर ग्रेड में जाएंगे, तो ये चीज़ें तब भी आपके साथ साथ आपके आती रहेंगी और आपको इनको थॉरली पढ़ना ही चाहिए। और एनी हाउ, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी, यू कैन बेटर आस्क मी। वी आर गोइंग टू डू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।